Okay, we will talk through the chat. Once you're not able to hear me, let me know through the chat. Let me know through the chat. Okay. So one word substitution, we studied that yesterday. Okay. Okay, okay. Okay, where is it? अभी तो निकाला था मैंने. So confligation भी मैंने आपको पढ़ाया. We talked about a lot of stuff. ठीक है, we studied a lot of stuff and here we go. So next word is have a colleagues. ये भी मैंने बोला. Conjunction भी मैंने आपको बोला. अब यहाँ से है an expert judge in the matters of taste. This is someone really important. It should be associated with the food and I will see this. ठीक. It's Kano. Oh my god. I need to check the this pronunciations beforehand. Kano. Yeah. Conser, exactly. It's a conser. Conser हो गया जिसका टेस्ट अच्छा हो, जिसका टेस्ट रिमार्केबल हो, जिससे हम चखवाते हैं. ठीक है. जिसको म्यूजिक की पता हो, फूड की पता हो, someone who's the expert, who knows everything about music or something, जिससे राय ली जाए. ठीक. Concert. ठीक है. To give one's authority to another. अपनी अथॉरिटी किसी और को देना. That's called delegate. ठीक है. समझ आ? कैसे मैं समझाऊं अभी ये? ओके. ओके. कोई नहीं किसी को भेजता अपना रिप्रेजेंटेटिव बन के, ये नुमाइंदा हम कह सकते हैं. अपनी अथॉरिटी उसको देके, हाँ मुझे रिप्रेजेंट करो. ठीक है. सो जो किसका एक्टिंग पर्सन हो, जब तक वो अवेलेबल ना हो. द यूएस डेलीगेट्स फॉर यूएन कमीशन वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं. सो ऐसा हम कह सकते हैं. सो ओके, आर यू एबल टू हियर मी? टेल मी इन द टेक्स्ट. इतना समझ आया? टेक्स्ट मुझे बताओ. So then we have next, okay, depreciate. किसी का वैल्यू कम होना. ठीक है. समझा? किसी का वैल्यू कम होना, that's called depreciate. So we will see this okay. किसी की इज्जत, किसी का ऑनर कम करना. ठीक है. किसी का वैल्यू कम करना. द recent floods have depreciated the value of land. फ्लड की वजह से जमीन की कीमत, वैल्यू घट गई है. अच्छा, यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलिए. Can you guys hear me? चैट में भेज दीजिए. आवाज आ रही है? Okay. That makes sense to me. Okay. Then we have another word that's important. Edifice. ठीक है. Edifice हो गया लंबी impressive building. ठीक है. समझ आया? बड़ी एक मशहूर अच्छी टाइप की बिल्डिंग. ठीक है. he owns a social edifice. उसके पास एक सोशल बड़ी बिल्डिंग है. ठीक है. Then we have egoistic. जो कोई अपने बारे में समझ, one who thinks only about oneself. कोई इंसान नहीं अपने बारे में खाली सोचता होता, अपनी इसके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने डिसीजन के बारे में, अपने ही बारे में जो ज्यादा ध्यान देता हो.
ठीक है yeah so okay then we have another one. Mm, 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 mm. Emphasize. ठीक है किसी पे to lay stress on something, किसी पे ज्यादा जोर देना. ठीक है the new law emphasizes the importance of reaching to the poor. नए लॉ से पता चलता है वो जोर डालता है इस जरूरत पे कि हमें गरीबों हमें गरीबों तक पहुंचना चाहिए. ठीक है एक ओके एपिटम हो गया पीक, state of perfect most typical example of something या peak. ठीक है ये सबसे his behavior was epitome of rudeness. उसका behavior rudeness की एक बेइंतहा एग्जाम्पल थी. ठीक है a state of perfect balance equilibrium. हाँ equilibrium कुछ कहते हैं इसको. I know the pronunciation but I'm not able to pronounce equilibrium something equilibrium. I have heard, but I am not able to pronounce. Even if I see the this pronunciation, I will not be, because I know some things in tongue that's not me. That's not making me pronounce it. Equi. Oh my god, shit. Oh, sorry. Okay. Equilibrist. कहाँ निकालूं मैं इसको एक सेकंड ऐसे रुको. कहाँ गया इसको क्या हो गया ऐसे रुक जाए 1 मिनट. Okay. Yes, here it is. Equilibrium. What the hell now happened? Is equilibrium. Okay. समझा? It should be yes. Yeah. Equilibrium. Yeah. Exactly. Equilibrium. Okay. Equilibrium. ठीक है हम कह सकते हैं इसको perfect balance, जिसमें ना कोई गड़बड़ हो, एक perfect balance. I'm trying to recover इसका ये हम कह सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड वर इन इक्विलिब्रियम. ठीक है वो बैलेंस में थी, ना कुछ कम था ना कुछ ज्यादा था. ठीक है इरेडिकेट हो गया, जड़ से ही खत्म करना. टू रूट आउट एन इविल डिजीज एक्स्ट्रा, जड़ से उखाड़ देना. ठीक है समझा? we can put it like this way, we should the evils like dowry etc need to be eradicated from the society. ठीक है समझा? Putting to death painlessly, especially to end suffering. Enthusiasm. Oh my god, name words for me too. It's euthanasia. Is it euthanasia? Okay. Have you heard about this word? I'm like, it's like for me first time. It's yeah, what is it? Euthanasia. Is euthanasia. Oh my god. I'm not able to pronounce this. Euthanasia. ठीक है समझा? Euthanasia. Oh my god. Oh my god. This is just some new law. हालांकि suicide haram है. Euthanasia एक नई practice है. There was a famous movie, Me Before You. It was one of the amazing and beautiful movie.
it was an amazing movie by this by what you call by one of the famous English writer. And in this movie there was this guy who was on a wheelchair. So अब उसकी जिंदगी व्हील चेयर पे बीतने वाली थी. Instead he decides to end his life. वो अब यूथनेशिया प्रेफर करता है. सोचिए हमें राइट अगर किसी का इलाज का बेमार है तम राइट या दुआ ज्यादा वो अपने आप को मार सकता है. ठीक है, समझा? ये बहुत बहुत ज्यादा है. एंड मी बिफोर यू इज अ वेरी सेम एग्जांपल ऑफ दैट. ठीक है, समझा? तो उसमें क्या हो जाता है, मी बिफोर यू में उसमें एक चीज हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा ये बीमारी होती है. द पर्सन हैज दिस डिजीज, द सीएस डिजीज. सो वो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि मैं 6 मंथ्स के बाद अपनी लाइफ एंड करूंगा. पर 6 मंथ्स के बाद उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? आफ्टर 6 मंथ्स हिज पेरेंट्स डू दिस अमेजिंग थिंग. They do this amazing thing. His parents वो उसको कहते हैं कि आप ऐसा करो, वो उसको ऐसे वो उसको कहते हैं कि आप ऐसा करो कि do one thing, आप ऐसा करो कि आप थोड़ा सा टाइम दो लाइफ को, आप एंजॉय करो, हम आपके लिए एंजॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, फिर आप अपना डिसीजन चेंज करो. फिर उसको एक मेड मिलती है, उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है. बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट लेडी ट्राइज टू चेंज हिज लाइफ, ही रिफ्यूजेस टू लिव द लाइफ. वो डिसाइड तभी मरना करता है. ठीक है, सो ही पुट्स हिज लाइफ टू एंड. तो इथनेजिया इज दिस प्रैक्टिस, हालांकि इस्लाम में हराम है. ठीक है, समझा? Extempore impromptu, what is this? Okay, extempore. Okay, another one is extempore. I hope it's extempore, and yeah, it should be extempore. Yeah, it's extempore. Yeah. Oh my god, it's extempore. It's extempore. Extempore. 3 दफा पढ़ी मेरे साथ. Extempore. Guys, I don't know these words myself, so I'm so sorry. Like, I don't so know. Extempore हो गया. And another name is, are you guys able to hear me? यहाँ तक बोलो मुझे. यहाँ तक मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, impromptu is right, is extempore. ठीक है, extempore. It was extempore, yeah. So these are the 2 new words. Please don't make this, don't okay. Remember these words, okay? हाँ, तो ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कि स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन. आपने कोई हड़बड़ी में स्पीच देते जिसमें हमने प्रिपेयर नहीं किया होता, जिसमें खुद पता नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पररी. ठीक है, समझा? एक्सट्रैक्ट, ये आपको पता ही होगा. एक्सट्रैक्ट हो गया, आपने किसी किताब से कोई आपके इसमें फॉर एग्जाम्पल आपके 7th क्लास में थी, एक एक्सेप्ट भी थी. आपको नहीं, जैसे आपको मैं क्या बताऊं, रुस्तम एंड सोहराब इज एक्सेप्ट और extract from another book. ठीक है, समझा? A person who has too much enthusiasm for his own religion. कोई दूसरा पर्सन होता है जिसको ये पहले मैं ये एक्सेप्ट आपको समझाऊं. वो किसी बड़ी चीज का पार्ट होता है, बड़ी किताब का, बड़ी नॉवल का किताब होता है, उसमें से वो लिया गया होता है. जैसे लिटिल गर्ल था आपका बचपन 7th क्लास में, वो एक कैथरीन मैन्सफील्ड की बड़ी बुक थी, उसमें से एक चैप्टर लिया गया था. दैट वाज एक्सट्रैक्ट. ठीक है, समझा? फिर है आपका फैनेटिक हो गया. कोई नहीं पागलों की तरह अपना रिलीजन बिलीव करने में, कोई उसके रिलीजन के बारे में कुछ बुरा बोले, वो उसी को गाड़ डाल सकता है. ठीक है, समझा? एंड देन वी हैव जेनोसाइड हो गया, डिलिबरेट किलिंग ऑफ होल कम्युनिटी और रेस. नस्ल कुशाई नहीं, जैसे हिंदुस्तान यहाँ पे कर रहा है, वो गोलियों से मार रहा है सारी कश्मीरी को, तो इट्स अ जेनोसाइड. ठीक है, या आपका फलस्तीन में स्लैम हो रहा है, वो वहां पे लोगों को मारे, दे आर कमिटिंग अ जेनोसाइड, इज अ क्राइम. जर्मिसाइड हो गया, मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, जो कि जर्म्स को मारे. सैवलॉन इज अ जर्मसाइड. ठीक है, ऑनररी हो गया, वर्क फॉर विच नो सैलरी
पेड. कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, ऑनररी, यानी वो काम किया, वो काम करना कि जिसमें कुछ फायदा ना हो, मुफ्त का काम करना, ठीक है, एज अ फेवर कोई काम करना, ठीक है. इलेजिबल हो गया जो कि पढ़ा ना जाए, ठीक है, समझ, दैट कैन नॉट बी रीड. दिस इज इलेजिबल, दिस इज एलिजिबल, एलिजिबल, oh my god, wow, eligible, okay, it's eligible, is eligible expert from a book. Yeah, we can put it this way. It's illegible writing. हम इसको जो पढ़ी ना जाए, जो ऐसी क्लियर ना हो, ठीक है, समझा. एंड देन वी हैव illicit, a trade that is prohibited by law. इसमें illicit में ट्रेड नहीं, कोई तिजारत नहीं, but every that behavior, every that तरीका, that is that is yeah, every that tariqa, that is not what I can say, that is not yeah, that's not what we can say, that's not allowed by society. कोई behavior is the illicit, या हम कहते हैं it's everything. English में ज्यादा it was an illicit affair, ठीक है, कि एक काबिल शर्म नहीं, वो छोड़े आप, illicit affair is gonna be problematic for you even. Illicit हो गया something that society doesn't allow. He was involved in illicit. It's illicit. I have heard this in one way. He was involved in a illicit selling of illicit copies of the new album. ठीक है, समझा? Okay. Then we have illiterate, one who cannot read and write, unpad. ठीक है. Her she's her mother, her brother's illiterate, ये भी आ सकता है. Improbable, ठीक है, जो कि that's that which is not likely to happen, जो नहीं हो सकता है. It's improbable that she will answer for my call. ये मुमकिन, ये हो ही नहीं सकता कि वो मेरी कॉल रिसीव करे, ठीक है. Inaudible, मैंने आपको कहती, am I audible? Inaudible हो गया जिसमें साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो कि आवाज ना आ जाए, वो आवाज जो कि सुनी ना जाए, ठीक है, समझा. Incomprehensible, a statement which cannot be understood, जो समझ ना आए. It was the incomprehensible, it was we were caught in incomprehensible situations जो हमें समझ ना आए, या the question seemed incomprehensible, ठीक है, समझा. Invisible, ये आपको पता है, a thing that cannot be seen with the human eye, ठीक है. I would love to be invisible one day, ठीक है, समझा. Misanthrope हो गया जो इंसानों से नफरत करता हो. I don't sound like, हमने कहते कभी, I am also misanthrope. I don't like humans. They are like irritating. Yeah. Okay, जो बाकी पे भरोसा ना करता हो. I sometimes feel like this. I'm like this. Misanthrope. He is a he has those he is known as a former misanthrope, but he is behaving like a good person right now, ठीक है, समझा. So दूसरा है आपका क्या है, numismatics. मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन आपको बताती, बट मेरी गलत हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. Numismatic, क्या numismatic हो गया आपको, हम कहेंगे साइंस ऑफ कॉइन्स, मेडल्स, एक्सेट्रा. वो स्टडीज जो कि हमें कॉइन्स के बारे में, मेडल्स के बारे में बताती है कि ये कितनी हेवी है, किस टाइप की है, किससे बनी है, किस में दी गई. इस न्यूमिज्मेटिक्स, ठीक है, यहाँ पे न्यूमिज्मेटिक्स है ये, ठीक है. देन वी इसमें हम न्यूमिज्मेटिक में हम ये कह सकते हैं, इसका क्या मैं आपको बता दूं, it's all related to numismatics, ठीक है, समझा. You'll have to study about numismatics for coins and all the stuff.
ये भी इसमें आ सकता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, आई प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट हो गया वो जो कि लाइक यू नो जो कि हम क्या कह सकते हैं, जो कि ब्राइट साइड की थिंग्स को देखे, कुछ बुरा भी हो जाए वो तब भी पॉजिटिव रहे, नहीं अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और वो जो एक्सेप्ट अच्छा और पॉजिटिव स्टफ करे, ठीक है, समझा। एंड देन वी हैव pan. Okay, what is it? Panacea. It should be panacea. Okay. Yeah, panacea. There should be two, panacea or panacea. Panacea, exactly. It's the panacea. Okay. A remedy for all disease. सभी disease के लिए remedies. हर दर्द की इलाज, ठीक है। इसमें हम ये सेंटेंस कैसे कह सकते हैं, द लॉ विल इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ लोकल फार्मर्स बट इट्स नो पैनेसिया। लॉ जो नया लॉ है वो लोकल फार्मर्स की जिंदगी बेहतर कर सकता है, बट इट्स नॉट अ पैनेसिया, इट्स नॉट अ पैनेसिया। ये सारी बीमारियों का इलाज नहीं है। पेसिमिस्टिक, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। पेसिमिस्टिक वो हो गया जो डार्क साइड ऑफ थिंग्स देखे, नेगेटिव स्टफ देखे, ठीक है, समझा। Vacillate. Have you heard vacillate? Any one of you? Come on. Okay, I don't have to seem it. I don't have to seem, you know. खुद भी मैंने नहीं सुना है, but vacillate means, okay, to sway to and fro to show indecision. आप नहीं कभी आसपास घूमते हैं, ऐसे चलते हैं कि यू नो जैसे जैसे आप कंफ्यूज्ड होते हैं और आपके पास कोई ये कभी कभी नहीं कोई चल रहा होता, फिर कोई परेशान होता है, फिर ऐसे चल रहा होता है आसपास पता वहां क्या कर, वहां क्या कर। सो दैट शोज एक जगह से वहां से ना बकारा ना क्या कर वो क्या कर, दैट शोज द स्टेट ऑफ माइंड कि आपको कोई डिसीजन नहीं है, आप थोड़ा सा परेशान है, ठीक है, समझ आया। यू नो हम इसमें ये कह सकते थे, I felt she vacillated on this issue, ठीक है, वो इस इशू पे उसका कोई डिसीजन नहीं था, वो आसपास से घूम रही थी, like she was confused and worried. Okay, so हाँ, okay, next one is okay, virtuosa. Is virtuosa. Okay, virtuosa means, okay, a person who's good at something. कोई इंसान जो किसी काम में अच्छा हो, ठीक है। ओके, वर्चुओसा, यू नो जो कि एक्सपर्ट हो किसी में, ठीक है, समझा। हम म्यूजिक में ज्यादा हम कहते हैं, ये म्यूजिक में ही होता है, म्यूजिक में भी हो सकता है या बाकी चीजों में भी हो सकता है। ओके, हम ये कह सकते हैं, इसमें सेंटेंस क्या मैं बताता हूँ, वर्चुओसा, शी इज अ वर्चुओसा सेलिस्ट, ठीक है, या her performance prove her to be, she gives a virtuosa performance, या हम ये कह सकते हैं, इट वाज अ virtuosa performance, जो किसी परफेक्ट इंसान, ऐसे इंसान ने दी हो जो कि परफेक्ट हो, या ही इज अ रियल virtuosa in kitchen, he is a real perfect person in the kitchen, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? On your mics. I think with this we come to end of this. On your mics. Okay, on your mics. Everyone. Yes, ma'am. Okay, text me समझ आया? Shall I end the class? Text me समझ आया? Yes, ma'am. समझ आया? Check your text. Yes, ma'am. Yes. Shall we end the class? Yes, ma'am. अगर तब भी किसी को कोई क्यूरीज होगी वो स्कूल आवर्स में मुझे कांटेक्ट कर सकता है, और आप इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होमवर्क करेंगे, फिर मुझे दिखाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।